हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो 3 मंथ्स पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट इंडिया ग्लाइकोल्स, एंड जैसे कि द बीट का प्राइस इट वाज अराउंड 550, एंड अभी नाउ इट रिसेंटली इट वेंट टिल 1000 रुपीज ऑलमोस्ट। इट इसने सिर्फ ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न्स दे दिया इन शॉर्ट टर्म फॉर आर ट्रेडर्स। एंड दोज हु टुक पोजीशन और दोज हु वॉच दिस वीडियो आफ्टर टेकिंग, मतलब पोजीशन लेने के पहले ये वीडियो देखा देगा या फिर किसी ने पोजीशन दिया रहेगा, तो दैट इज वेरी गुड. So you can trail your stop loss or you can exit your position if you want, and you can check this video also if you want to learn about this. So whatever techno fund analysis video that I am sharing on this channel, on our YouTube channel, so basically सारे videos में most thing, one of the thing is common. I am sharing only the charts of the stocks जिसमें breakout हुआ है या फिर retest हो रहा है या फिर support के आसपास trade कर रहा है. I am not sharing any trades या not sharing any stock analysis जो कि एकदम नॉट गिविंग एनी सिग्नल बेसिकली कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ सिग्नल दे रहा है. बट शेयरिंग चार्ट जहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, थोड़ा स्टडी करके इफ यू एनालाइज दैट पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल ऑन योर ओन, so it will help the viewers as well to take the position at the right time. So basically I'm doing the same thing, and if you want to join us in this journey and want to understand about how the analysis is being done by me, technical and fundamental analysis basically for any stock, so आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड यू कैन basically check all the videos as well. In the past you will be getting live learning instead of learning after the market and everything, but you will be getting live learning how to take trades, how to plan out the stop loss, target, everything. So you can subscribe to our channel, and you can also share this channel with your friends or relatives who are new to market or want to learn. So yeah, this is about the previous position update. Even Godfrey Phillips had given almost 20% returns in 20-25% return in short term. So yeah, this is about the previous videos that was uploaded. And अभी हम अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने आज ऐसे it had went down basically by almost 176 points. And if anyone can think कि एक expected था क्या basically in market, so I would say yes, it was very much expected. The reason for this is, अगर हम if you are following me on Twitter, तो यहाँ पे हमने कल ही अपडेट किया था कि basically there was a news from Moody कि it had upgraded the ratings of outlook of India to so basically this was a very good news for our nation. But from the market point of view, जैसे कि हम एक कोट मालूम है कि buy on rumors, sell on news, so this was very much applicable. और यहाँ पे वही हमने देखने मिला कि जैसे ही कल न्यूज़ है आफ्टर market had went down today. And also in morning also I have updated about this 9:05 a.m. Too much positive news for the market. So basically everything I'm updating on Twitter, whatever live update is there, so you can join us on Twitter or Telegram. Basically I'm sharing all the live updates on these two platforms, so you can check those things. And so let's start with the techno fund analysis video of Astral Limited. So आज इसने भी करेक्ट किया ऑलमोस्ट 5% से, एंड तो अभी यहाँ पे इसने भी 5% का करेक्शन दिखा, जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हो एक बड़ा सा रेड कैंडल है, एंड इसमें क्या ट्रेड बन सकता है बेसिकली. सो फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज, यहाँ पे अगर हम बेसिक लेवल से सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन बना है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसको अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस है. मतलब यहाँ पे उसने उसके आसपास ही ट्रेड लेवल को रेजिस्ट करके इट वेंट डाउन. So basic technical analysis, and you should always be prepared with your chart basically. ये आपका resistance support line पहले से रहना चाहिए in market, and you just have to take action if a stock is trading near that particular level. You just have to take your action. That's it. So always stay prepared with your analysis part. Don't draw lines and anything during market. It won't help. So you can stay prepared. अभी हम इसमें अगर देखें, so I will use the Fibonacci retracement first, and then we will go to price action. So यहाँ पे जब ये डाउन ट्रेंड था फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो यहाँ पे इसने लो बनाया था एक, एंड यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड दिखाया बेसिकली. दिस वाज वन अप ट्रेंड दैट द स्टॉक हैड शोन रिसेंटली, एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे अभी इट इज ट्रेडिंग नियर 38.2% का सपोर्ट लेवल, which is 2234. So this is one support that the stock has currently,
इसके बाद का जो सपोर्ट है 50% पे विच इज 2173 एंड देन द नेक्स्ट सपोर्ट इज 2111. सो दिस आर द टू क्रूशियल लेवल्स फॉर एस्टर करंटली. एंड अभी यहाँ पे वो एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है विच इज 2234 और 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल. अभी हम अगर इसको लाइन चार्ट पे लेके जाए एंड इफ आई जस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस, सो दिस आर द टू टॉप्स. डबल टॉप बना के इट वेंट डाउन. यहाँ पे इसने दो टॉप बनाया था ऑन लाइन चार्ट. एंड अभी अगर हम देखें तो ये दो जो चार्ट है वो रेजिस्टेंस था पहले यहाँ पे. एंड नाउ इट कैन बिकम अ सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल. यहाँ पे अभी इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है बेसिकली. इफ यू चेक वॉल्यूम्स एज वेल, ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था ऑन दिस डे. यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था बड़ा वाला एंड वॉल्यूम्स भी वाज अबव एवरेज. आफ्टर दिस ब्रेकआउट इट हैज नाउ रीटेस्टिंग दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन. सो दैट मीन्स कि जिसने ब्रेकआउट में एंट्री करना मिस कर दिया था, तो बेसिकली द मार्केट इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एंटर अगेन. तो वापस से अ ट्रेडर कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट द सेम ब्रेकआउट लेवल. सो दिस इज द काइंड ऑफ द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी अगेन, बिकॉज यहाँ पे जो है वो रिस्क बहुत कम है. ब्रेकआउट के आसपास जो रीजन पे अगर इफ यू आर गेटिंग अ स्टॉक ऑन रिटेस्ट देन दैट इज वेल एंड गुड. अभी अगर हम इसको लाइन कैंडल स्टिक में अगर वापस से प्लॉट करें, सो इट वोंट द लाइन जो है वो सही से नहीं दिखेगा. बट अगेन जो ब्रेकआउट कैंडल है वो ये है एंड जो रिटेस्ट हो रहा है अगेन इट इज ऑन द सेम लाइन इटसेल्फ जो कि हमने लाइन चार्ट में देखा था. सो अगर हम देखें तो फिबोनाची पे भी इट इज ट्रेडिंग नियर सपोर्ट एंड ऑन द टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन एज वेल इट इज ट्रेडिंग नियर सपोर्ट एज वेल. सो यहाँ पे दो सपोर्ट अवेलेबल है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. एंड इफ दिस सपोर्ट ब्रेक्स देन हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 2100 के आसपास है विच इज लास्ट सपोर्ट फॉर एस्ट्रल. सो यू कैन ट्रैक दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म. एंड इसमें जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इट विल बी एट दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज 2100 जो कि हमने फिबोनाची में भी डिस्कस किया था बेसिकली. तो दिस विल बी अ स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड. एंड जो हमारा टारगेट रहेगा अपसाइड में इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेंज कैलकुलेशन. तो हम रेंज कैलकुलेशन भी कर लेते हैं इसका. सो ये रेंज है बड़ा वाला एंड नाउ वी विल जस्ट ऐड दिस रेंज अबाउट द रेजिस्टेंस लाइन. सो जो हमारा टारगेट है वो 2600 के आसपास आ रहा है currently. So current price is 2245. जो स्टॉप लॉस है वो 2100 का एंड जो टारगेट है वो 2600 के आसपास है. सो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें तो जो रिस्क है डाउनसाइड 150 पॉइंट्स का, जो रिवॉर्ड है ऊपर वो 350 पॉइंट्स का है. सो मोर और लेस इट इज 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड विच इज प्रीटी गुड फॉर अ ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर. एंड अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें इसको तो जो हमारा रिस्क है वो 6 to 7% के आसपास है. एंड जो हमारा रिवॉर्ड है ऊपर के साइड इट इज अराउंड 16 to 17%. So this is a decent risk reward trade for a trader as well. And अभी यहाँ पे वो बेसिकली जो मार्केट अभी गिरा है तो currently the market is giving opportunity to trader who have missed the bus. So you can take this particular trade and currently it is trading at low risk reward, low risk opportunity, low risk level. यहाँ पे risk बहुत कम है and reward है वो बहुत ज़्यादा है. So you can definitely track this particular stock as well. अभी हम इसका फंडामेंटल स्टडी करेंगे. सो बेसिकली द मार्केट कैप इज अराउंड 47,000 करोड़. जो स्टॉक का पीई 104 है. इफ यू चेक द प्रॉफिट एंड लॉस तो कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर एंड जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है. ईपीएस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अलॉन्ग विद द नेट प्रॉफिट एंड कंपनी इज पेइंग डिविडेंड ईयर ऑन ईयर रेगुलरली. इफ यू चेक द बैलेंस शीट सो कंपनी का जो रिजर्व्स है वो इंक्रीज हो रहा है एंड जो बोरोइंग से इट इज डिक्रीजिंग यहाँ पे एंड इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो नाउ. डेट फ्री कंपनी वी कैन से डेट फ्री कंपनी इट हैज नो बोरोइंग करंटली. यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट कैप इट इज 47,000 करोड़ है, जो बोरोइंग से वो 80 करोड़ का ही है. सो इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फॉर द कंपनी. अगर हम इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर यहाँ से. एंड जो एफआईज है दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक एंड जो डीआईज है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं स्टेक. सो बेसिकली प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं एंड एफआईज एंड डीआईज आर टेकिंग पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. अगर हम प्लेजिंग देखें इसमें सो यहाँ पे प्रमोटर्स की कोई प्लेजिंग नहीं है. सो दिस इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी. एंड लास्ट 1 ईयर में
there is no decrease in promoter holding. So basically 3 years के data में it has decreased, but last 1 year में it hasn't, his promoter holding didn't decrease. And pledging भी नहीं है यहाँ पे, balance sheet में company is debt free and company is paying dividend, profit increase हो रहा है, sales increase हो रहा है, and everything is good. Only thing is यहाँ पे आपको opportunity दे रहा है on terms of technical analysis, and it is a short term position, not a long term position. So we will give more weightage to technicals instead of fundamentals, and you can definitely track this particular stock as well for short term, and you can do your own analysis as well. And if you want, you can share this your analysis with us on Twitter or any other platforms if you want. And this is all about today's Techno Funda analysis video of S12. And if you have learned anything from this video, and if you want to more such videos in the future as well, then don't forget to subscribe our channel. And also you can hit the like, you can like this video as well if you have learned anything from this. And these are the IDs for Twitter and Telegram in which you can follow us. So for more for market related updates, and there's a disclaimer also with this video. Thank you guys.